Good afternoon, student. Today I am going to discuss question and answer of chapter 4, E part. Question number 1. Define force. Is it necessary for the two bodies to be in direct contact for a force to exist between them? Explain with example. As you know, I have already discussed what is force. Force is a push or pull which an object experiences when it interacts with another object. Second part, is it necessary for the two bodies to be in direct contact for a force to exist between them? No, it is not always necessary for the two bodies to be direct contact for force to be exist between them. For example number 1, magnetic force between two objects. And second is earth attracts things towards it without touching them due to gravity. ये बुक रखा हुआ है, अगर इस टेबल को हम पुश करके हटा देते हैं तो ये बुक नीचे की ओर गिर जाएगा. ये पृथ्वी से टचा हुआ, पृथ्वी के टच में नहीं है, फिर भी ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ अट्रैक्ट्स this book as well as two magnets always repel each other or attract each other. When two like poles kept one another, they always repel, and two unlike pole always attract each other. It is example of this question. Next, question number 2. State 3 effects of a force. Give suitable examples. 3 effects of a force are as follows. First, change in shape of an object. Example, to make a chapati, take duff and roll it between the palms to make it aspherical. गूथा हुआ आटा आप लो और हाथ से गोल करके उसको चकले पर डाल करके बेलन से चला दो, या हाथ पर ही चपटा कर सकते हो. That is the example of change in shape of an object. Second effect, change in a state of motion. Push a cart to make it move. अगर कोई गाड़ी कार्ट खड़ी है, रेस्ट में है, आप उसे पुश करके मोशन में ला सकते हो. इट इज एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. एंड थर्ड इफेक्ट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. पुश द बॉल टू मेक इट मूव एट एन एंगल. अगर आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में बल्ले से लगने के बाद बॉल किधर जाएगा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन. फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्वेश्चन नंबर A. Snow shoes are more effective than ordinary shoes for walking on snow. Snow shoes more effective than ordinary shoes for walking on snow. This question belongs to force and pressure as well as friction. लेकिन हम लोग फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे हैं. सो आंसर, it is because ordinary shoes have thin or narrow base as compared to snow shoes. So they apply more pressure on the snow as compared to the snow shoes.
That is why they help us to walk on snow easily. Question number B. Porters place a large round piece of cloth on their heads when they carry heavy loads. Porters place a large round piece of cloth on their heads when they carry heavy loads. आप देखे होंगे कि पॉटर्स अपने माथे पर पगड़ी बांधता है कपड़े से, एरिया बड़ा कर देता है. क्यों ऐसा करता है? As we know that pressure is equal to force by area, and pressure is inversely proportional to area. So the answer is the round piece of cloth on their head increases the area. We know that pressure is inversely proportional to area, so therefore increase in area reduces the pressure, and this helps the porter to carry the heavy loads easily. अगर उसके माथे पर जो राउंड पीस ऑफ क्लॉथ है उसका एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर घट जाएगा और हैवी लोड्स को आसानी से वो कैरी कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए शार्प नाइफ, एक धारदार चाकू. ए शार्प नाइफ कट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मोर इफेक्टिवली देन ए ब्लंट नाइफ. ब्लंट नाइफ मीन्स भोथर चाकू. जो चाकू तेज नहीं होता है उसे ब्लंट नाइफ कहते हैं. ए शार्प नाइफ कट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मोर इफेक्टिवली than a blunt knife because the surface area of knife of sharp knife is lesser than the blunt knife. धारदार चाकू का एरिया बहुत ही कम होता है. When the surface area is lesser, the sharp knife can easily cut through the fruit or vegetables, making it easy to cut. धारदार चाकू का एरिया कम होता है, प्रेशर ज़्यादा लगेगा और आसानी से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स काटा जा सकता है, मेकिंग इट इजी टू कट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी. स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ वाइड स्ट्रैप्स टू कैरी देम. आप लोग स्कूल बैग कैरी करते हो, उसका स्ट्रैप्स जो पट्टी होता है जो आप अपने कंधे पर टांग कर लाते हो, उसका स्ट्रैप्स पहले पतला आता था, अब मोटा आता है क्योंकि हम लोग उसमें कॉपी किताब कैरी करते हैं. स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ लार्ज वाइड स्ट्रैप्स टू कैरी देम बिकॉज इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया. स्ट्रैप्स का एरिया बढ़ जाएगा इन कॉन्टेक्ट विद द सोल्जर्स एंड रिड्यूस द प्रेशर. एज वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम हो जाएगा. किस पर? प्रेशर ऑफ द शोल्डर. रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द शोल्डर of the student's shoulder so that students easy to carry. Question number E. It is much easier to burst an inflated balloon with a needle than with the finger. फूला हुआ बलून को आप सुई से आराम से फोड़ सकते हो, लेकिन फिंगर से टच करके नहीं फोड़ सकते हो क्योंकि हमारे फिंगर का एरिया ज़्यादा होता है और निडल का एरिया बहुत ही कम होता है. फिर वही रूल, प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए. प्रेशर इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सो आंसर इज वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया since a needle has lower surface area as compared to the finger. फिंगर का आगे का देखिए बहुत ही ज़्यादा होता है एरिया, लेकिन सुई इतना ही पतला होता है, बहुत ही कम होता है. सो वी कैन से दैट नीडल हैज लोअर सरफेस एरिया एज compared to the finger. So it is easier to burst than the inflated balloon from needle as compared to the finger.
Next question number F. Mountaineers may suffer from nose bleeding at high altitudes. ऊपर जाने पर या माउंटेनियर्स को नाक से खून निकल सकता है, ऐसा क्यों? एयर प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो हायर अप. जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एज वी हैव डिस्कस. सो एट हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लेस देन द प्रेशर exerted by the blood inside the body. This causes some of the blood vessels burst and the nose starts bleeding. जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे एयर मॉलिक्यूल्स, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर का प्रेशर, शरीर के अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है. श्वास लेना मुश्किल हो जाता है. ब्रीदिंग बिकम्स डिफिकल्ट एंड the pressure exerted by the blood inside the body, this causes some of the blood vessels burst and the nose starts bleeding. इसीलिए माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एयरप्लेन्स हैव प्रेशराइज्ड कैबिन्स फॉर पैसेंजर सेफ्टी while flying high in the atmosphere. एरोप्लेन में प्रेशराइज्ड कैबिन्स पैसेंजर की सेफ्टी के लिए होता है. जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं एयर प्रेशर कम होता जाता है. सो लेट अस डिस्कस. द एयर प्रेशर इनसाइड द कैबिन इज ऑलवेज केप्ट हायर देन द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड. At higher altitudes, when airplanes fly, at higher altitude where airplanes fly, the air pressure is very low. At this altitude, humans can not breathe very well, and our body gets less oxygen. That is why airplanes have pressurized cabins for passenger safety while flying high in the atmosphere. Next, question number 4. Question number 4. See the question in the book. Two rods A and B of the same weight and equal length have different thickness. A boy, while playing with them on a beach, held them vertically on the surface of sand as shown in the figure. Which one of them will sink less? Explain. दो रॉड है ए और बी, सेम वेट का और इक्वल लेंथ का और अलग अलग थिकनेस का, जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं. एक लड़का इसके साथ खेल रहा है और दोनों को वर्टिकली सैंड में रख दिया, तो कह रहा है कि विच वन ऑफ देम विल सिंक लेस, कौन कम सिंक करेगा. सो आंसर, रॉड ए विल सिंक डीपर एज इट हैज a smaller area of contact. Therefore, the weight of the rod, same force, produces more pressure. In case of rod B, the same force produces less pressure. You can say rod B sink less in comparison to rod A. Okay. Question number 5. See, 3 holes A, B, C,
are made in an empty can at different levels, one over the other, as shown in the figure. They are temporarily closed with an adhesive tape. तीनों होल को टेप से बंद कर दिया गया है. नाउ दिस द कैन इज नाउ फिल्ड विथ वाटर. इसमें पानी डाल दिया गया. व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन द टैप ऑन ऑल ऑफ देम इज पुल्ड आउट. अगर टेप को पानी भरने के बाद खोल दिया जाता है तो क्या होगा? जस्टिफाई योर आंसर. सी आंसर. दिस आंसर इज बेस्ड अपॉन एक्टिविटी 8. एक्टिविटी 8 से ये लिया गया है. When the tape of all of them are removed, then we will observe that the pressure of water coming from the hole which is at the bottom will have highest pressure. सबसे नीचे में जो होल है उससे पानी ज्यादा रफ्तार से निकलेगा, वहां पर प्रेशर सबसे हाईएस्ट होगा. एंड द होल एबव इट विल हैव ए लिटिल लेस प्रेशर and the hole at the top will have the lowest pressure from the hole. सबसे ऊपर वाले का प्रेशर in the comparison of B कम होगा और B वाले का प्रेशर in the comparison of A कम होगा और सबसे ज्यादा प्रेशर A का होगा. क्वेश्चन नंबर 6. Make two tiny holes of the same size at equal heights from the bottom in the plastic bottle. See here, two holes at the same height in the bottle A and B. Cover them and fill the bottle with water. Cover them and fill the bottle with water. दोनों छेद को एडहेसिव टेप से बंद किया जाए और वाटर को फिल किया जाए. लेट द कवर्स बी नाउ रिमूव्ड. हटा दिया जाए. स्टेट द ऑब्जर्वेशंस एंड द रिजल्टिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी. स्टेट द ऑब्जर्वेशन. यू हैव टू राइट ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स. सो सी हियर, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन एक्टिविटी 9. एक्टिविटी 9 पर यह बेस्ड है. So answer the at first observation. The water pass in equal amount through the holes. क्योंकि दोनों छेद, दोनों होल सेम हाइट पर है तो वाटर पास इन इक्वल अमाउंट थ्रू द होल्स. कंक्लूजन्स. द वाटर प्रेशर इज द सेम एट दैट लेवल. दोनों का हाइट सेम होने की वजह से प्रेशर क्या होगा? सेम. ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स. एंड क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन. सी द क्वेश्चन. डिस्कस इन ब्रीफ द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ एल्टीट्यूड. डू चेंजेस इन टेम्परेचर ऑल्सो कॉज ए चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. डिस्कस करना है ब्रीफ में. द वेरिएशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन होता है. डू चेंजेस इन टेम्परेचर ऑल्सो कॉज ए चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यस, लेट अस डिस्कस. सी क्वेश्चन नंबर 7. As we move upwards through the atmosphere, the temperature as well as atmospheric pressure changed. The atmospheric pressure decreased with increasing altitude because at higher altitude there is low air molecules, so their pressure is low and vice versa. Already discussed. जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और जैसे जैसे नीचे आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है. ड्यू टू दिस इट इज रिटन एज वाइस वर्सा. एंड सेकेंड लाइन, एयर प्रेशर ऑल्सो वेरीज विथ टेम्परेचर.
हाउ? ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ्स सरफेस, पृथ्वी जैसे जैसे गर्म होती है, धरती जैसे जैसे गर्म होता है, एयर प्रेशर कैन चेंज रैपिडली एट ए हॉटर प्लेस, द वार्म एयर, गर्म हवा, द वार्म एयर देयर इज लाइटर देन द कूलर एयर इन द सराउंडिंग्स रीजन्स, गर्म हवा हल्की होती है, भारी हवा, ठंडी हवा भारी होती है, हेंस एयर कैन रश in from higher pressure surroundings area to the lower pressure area and vice versa. Clear? Okay, thank you.